Good morning, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. This is your physics class. Before starting the work, let's take pledge. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all time the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with physics. This is your assignment number 3rd for physics, chapter 1, measurements. So these are the numerical problems. First of all, we have the first numerical. The length of a rectangle field is 50 meter and breadth is 35 meter. Calculate its area. We know about the formula of area of rectangle field. Area of rectangle field is length into breadth. We have the values of length and breadth here. The length of the field is length of field equals to 50 meter. Breadth of the field, that is 35 meter. So what about the area of rectangle field? Rectangle field which is equals to length into breadth. Length की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 मीटर मल्टीप्लाई बाय द breadth that is 35 meter. So by multiplying 50 into 35 we get 1750 मीटर को जब मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम मीटर स्क्वायर. सो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड. दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल. एंड अबाउट द सेकेंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट ऑफ अ मेटल इज 450 centimeter square and its length is 25 centimeter. Calculate its breadth. लेंथ कितनी गिवन है रेक्टेंगल शीट की? लेंथ कितनी गिवन है हमें रेक्टेंगल शीट की? दैट इज 25 सेंटीमीटर. शीट इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. एरिया कितना गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल्स टू 450 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो नेक्स्ट अबाउट द एरिया का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ. सो टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ फील्ड वी हैव फॉर्मूला rectangle sheet. We have formula area over length. एरिया का जो हम लेंथ के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू ऑब्टेन होगी दैट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. 25 को 450 से डिवाइड करेंगे वी गॉट 18 सेंटीमीटर. सो दिस इज ऑल अबाउट द breadth of the rectangular sheet. Next numerical, how many decimeter are equal to 1 meter square? के 1 meter square में कितने डेसीमीटर प्रेजेंट होंगे? सो वी हैव 1 meter equal to 10 decimeter.
1 मीटर कितने डेसीमीटर के इक्वल होता है? 10 डेसीमीटर. सो व्हेन वी स्क्वेयरिंग ऑन दिस साइड 1 मीटर स्क्वेयर, there is also squaring on the next side. 10 की square and we have decimeter square. 10 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 we got 100 decimeter square. So 1 meter square equals to 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर. 1 मीटर किसके इक्वल है? 10 डेसीमीटर स्क्वायर. डेसीमीटर के इक्वल है. जब स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन दिस साइड, देयर इज़ ऑल्सो स्क्वेयरिंग ऑन दी राइट हैंड साइड. 10 की स्क्वेयर हुई तो कितना बना? 100. और डेसीमीटर की स्क्वेयर करेंगे तो डेसीमीटर स्क्वेयर. सो दैट्स वाई 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 डेसीमीटर स्क्वेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The area of rectangle field is 600 meter square and its breadth is 15 meter. Calculate its length. एरिया कितना गिवन है हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का? 600 मीटर स्क्वायर. और इसकी लेंथ कितनी गिवन है? 15 मीटर. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. ठीक है, यहाँ पे here we have area of rectangle field is 600 meter square and breadth of the rectangle field is 15 meter. So now we have to find length of the rectangle field. हमें length find करनी है. length के जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ. और जब हमें लेंथ फाइंड करनी होगी वो क्या होगा? हमें इक्वल्स टू एरिया ओवर ब्रेथ. तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे. एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 600 मीटर स्क्वायर. और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर. व्हेन वी डिवाइड 15 इसको 15 को 600 के साथ डिवाइड करेंगे, वी गॉट 40 meter. There is a cancellation of 1 meter. So this is the length of rectangular field which is equal to 40 meter. So next about the next numerical. The base and height of a triangle are 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. बेस हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर. हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर. और हमें इसका एरिया फाइंड करना है. वी हैव बेस, हमारे पास बेस और हाइट की वैल्यू लिखी. नेक्स्ट अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे हम बेस एंड हाइट की वैल्यूज़ पुट करेंगे. बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 सेंटीमीटर. और हाइट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर. 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. वी गॉट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल. This is all about area of triangle. So next numerical. A cube has a side of 4 centimeter. What is its volume? इसका वॉल्यूम कितना होगा? क्यूब की एक साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड क्यूब. साइड को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता चल जाएगा. वी हैव वॉल्यूम ऑफ क्यूब. पहले हमारे पास साइड कितनी गिवन है? साइड इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितनी गिवन है हमारे पास यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब.
साइड क्यू, साइड को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, साइड को हम ए के साथ डिनोट करते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे ए क्यू भी मेंशन कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, 4 4 द 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, तो दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। So next about numerical. An object has a mass of 100 gram and a volume of 20 cubic centimeter. इसका जो हमारे पास मास है वो कितने है 100 ग्राम और वॉल्यूम है वो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसकी हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है हमारे पास? Density of object, mass over volume, mass over volume. And in this numerical, what is the value of mass? That is 100 ग्राम। कितनी है? 100 ग्राम। और वॉल्यूम हमारे पास कितने हैं? 20 सेंटीमीटर क्यूब। When 20 divided by 100, it will become 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा फ्रॉम डिनोमिनेटर टू, इट विल बिकम 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ कॉल्ड पर, और इट कैन बी राइट 5 ग्राम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। वी कैन ऑल्सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो विद द पॉजिटिव साइन, यहाँ पे स्लैश डाल के, यहाँ पे क्या करेंगे आप विद द नेगेटिव साइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस न्यूमेरिकल इन योर ऑनलाइन क्लास। सो if you have doubt, then we will discuss in your online class. Thanks students, have a nice day.